So today in this class, we will take the next topic, which is pest-resistant plant. In the pest-resistant plant, our target to prepare the plant which resist against the pest. Pests are generally the organism which damage the plant. So with the help of biotechnology, we can prepare the pest-resistant plant. We can take example of tobacco plant, tobacco root. The tobacco plant is suffer with the nematode Melogyna incognita. In fact, the root of tobacco plant. So it damages the root of tobacco plant, clear? And also reduce the production of tobacco. When root is infected, it is unable to transport the water and minerals. So plant on the production will be affected. So causes organism is a nematode or the pest. Now it can be prevented by using the RNA interference or RNAi. It is a very important word, which is RNA interference. That means we can stop the RNA working. Clear? So RNA working, किस टाइप से होती है RNA working होती है? First of all DNA. Now this DNA is transferred. This DNA is transferred by the process of transcription into the mRNA, tRNA, and then rRNA. Now, mRNA, tRNA, and then rRNA undergo in the process of translation. And by the process of translation, the respective cell produces a protein. So in this case, this nematode has a special mRNA, which is responsible for production of protein, which damage in the tobacco plant. So our target to stop the mRNA working or the translation. If we stop the translation, that time the nematode unable to produce the protein, and when protein is not produced, that time they were unable to damage in the tobacco plant. They were unable to damage in the tobacco plant. Clear? So this process is called pest-resistant plant production. Clear? And name of these process is called RNA interference. It is a very important for board examination, 2 or 3 marks, in which it can be prevented by using RNA interference, the process which is checked by the silencing the specific mRNA due to complementary double-strand RNA. That means our target to stop the mRNA to translate by the formation of double-strand RNA. It is a single-strand RNA, and we will prepare the double-strand RNA. And this double-strand RNA unable to express, unable to translate into the protein. Clear? Second point, double-strand RNA bind and prevent the translation of the mRNA. So double-strand RNA unable to translate, reduce the translate to the mRNA. तो डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होगा ये क्या करेगा कि एमआरएनए के ट्रांसलेशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा. अब यहाँ पे ये तो हमारा टारगेट, एम और ऑब्जेक्ट जितने भी थे टूल्स थे वो हमने यूज में ले लिए. नेक्स्ट इज बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट. अब यहाँ पे हमने एग्रोबैक्टीरियम जो है टीआई प्लाज्मिड दिया. अब इस टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या कर दिया, ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो हमने, हमारा टारगेट है आरएनए इंटरफेरेंस करना, तो ये जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इस टीआई जो प्लाज्मिड है इससे टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करवाए. तो यहाँ पे जनरली जो 2 आरएनए है, क्लियर, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे व्हेन दे इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ जीन. तो जब ये जीन टोबैको में एंटर करेगा, यहाँ पे 2 आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ जाएंगे सामने. स्ट्रैंड आते ही यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा. क्लियर? सो हियर द डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्मेशन. व्हेन डबल स्ट्रैंड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड, दिस इनिशिएट द RNAi और RNA interference, and hence it silence the mRNA. और ये mRNA की एक्टिविटी को, ट्रांसलेशन को साइलेंस कर देगा, एंड देन स्टॉप of the nematode is nematode. Clear? Now the parasite cannot survive in the transgenic
होस्ट, अब ये पैरासाइट जो होगा इस ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो ये सर्वाइव कर सकता था, एंड दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस मैनी चेंजेस इन द रूट, और ये प्लांट में कई सारी रूट प्रोड्यूस कर सकता था, कैपेबल था, क्लियर। बट अब हमने इस प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। कौन से प्लांट को? टोबैको प्लांट को। अब ये टोबैको प्लांट में ये होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आरएनए इंटरफेरेंस है, और ये इसके एमआरएनए को साइलेंट कर देगा, इसके एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देगा, तो इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द पेस्ट, क्लियर। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा था जनरली, क्लियर। Again, repeat in a simple method. First of all, how we use the biotechnological application in pest-resistant plant production. Number one, pests are the some microorganisms and some higher animals, some which damage the plant part. Clear? Also damage the plant part and reduce the production of plant. तो दोनों करेगा, प्लांट पार्ट को ये डैमेज कर देगा और प्लांट के प्रोडक्शन को ये रिड्यूस कर देगा. So that's why we called it is called pest. Clear? In next, we will take the which type of generally gene we use in the pest resistant plant production, or we can say the transgenic plant production. We use the gene which perform the RNAi or RNA interference. Clear? This gene is responsible for formation of double-strand RNA in plant. Clear? Which interferes or change or stop the working of mRNA. Clear? So it is our target. Now, process of formation of transgenic plant, the same process which we use in the formation of recombinant DNA technology, by which we insert these genes into the host cell, and now host cell is in the form of zygote, and now zygote develop into the embryo, embryo develop into the seed, and then seed germinate and produce the tobacco plant. तो जब भी टोबैको प्लांट प्रोड्यूस होगा, टोबैको प्लांट की जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल में जितने भी जेनेटिक मटेरियल है, जीन है, उसमें ये जीन प्रेजेंट होगा. अब जब भी ये टोबैको प्लांट के पास में ये जो आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक है, इस टेक्निक के रीजन में निमेटोड जब भी इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो निमेटोड अटैक करने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, एमआरएनए प्रोडक्शन, और एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाएगा और इसकी रूट को डैमेज करता है. तो जैसे ही एमआरएनए एंटर करेगा, एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए के साथ में ये दूसरा स्ट्रैंड एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड हो जाएगा, एंड नाउ इट प्रोड्यूस द डबल स्ट्रैंड आरएनए. अब डबल स्ट्रैंड आरएनए इज अनेबल टू परफॉर्म देयर वर्क, और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होगा अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाए. व्हाट विल बी द वर्क? वर्क इज ट्रांसलेशन. क्लियर? तो ये ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, और ट्रांसलेट नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो टोबैको प्लांट की जो रूट्स होगी उसमें कोई डैमेज नहीं कर पाएगा. So this process is called pest resistant plant production. Clear? और इस प्रोसेस से हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे टोबैको का, और टोबैको के ट्रांसलिंग प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं है. So it is a very good example of the application of biotechnology. Next we take the biotechnological application in medicine. तो वहां तक तो था एग्रीकल्चर फील्ड में. इन एग्रीकल्चर फील्ड वी यूज द टू क्वेश्चन. फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ बीटी कॉटन. बीटी कॉटन में क्या था? बीटी कॉटन में वी प्रिपेयर द कॉटन, और बीटी कॉटन, तो कॉटन प्लांट में जनरली प्रॉब्लम क्या थी, बॉलवर्म जो था वो कॉटन प्लांट डेवलप होते ही उनमें डैमेज कर रहा था. उनकी बॉल्स जो थी, उनकी जो ग्रोथ एरिया था उनको डैमेज कर रहा था. तो हमने उसमें बैसिलस thuringiensis जो था उसके जीन, दैट मीन्स द क्राई जीन, CRY जीन को इंसर्ट करवा दिया. अब ये जीन जब इसमें इंसर्ट हो गया तो इस जीन के रीजन से वो प्लांट भी क्या हो गया, कैपेबल हो गया क्राई प्रोटीन प्रोडक्शन में, एंड दिस क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस द टॉक्सिन, एंड दिस टॉक्सिन इज हार्मफुल फॉर द बॉलवर्म. तो जब भी इसके सीड को, कॉटन के प्लांट को ये बॉलवर्म फूड के फॉर्म में लेगा, definitely this poison enter into the gut and then damage the epithelial, and finally it converts it into the dye. तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में हमने बीटी कॉटन पढ़ा था, और सेकंड हमने पढ़ा है अभी which is formation of pest resistant plant. So two example of the application. First, formation of BT cotton, 3 marks के क्वेश्चन आ सकता है, and the formation of pest resistant plant भी 3 marks के क्वेश्चन आ सकता है. तो जब ये फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट पूछा जाएगा, दैट टाइम वी राइट कि हमने क्या क्या इसमें लिया. नंबर 1, हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द पेस्ट. क्लियर? सेकंड,
विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट बाय द पेस्ट, वो सेकंड हमने लिखना है। नंबर थर्ड, विच जीन वी यूज टू ट्रांसफर और द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए, जनरली ट्रांसजेनिक पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हमें कौन सा जीन यूज में ले रहे हैं? आरएनए इंटरफेरेंस कर सकते हैं, आरएनए को चेंज कर सकते हैं, वो जीन यूज में लेंगे। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करवाया है उसका नेम बता दिया। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि हमने कौन सा वेक्टर यूज में लिया है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए। तो हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिनिफेरम जो वेक्टर है वो यूज में लिया, विच इज कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड यूज में लिया। इस टीआई प्लाज्मिड में जीन इंसर्ट करवा देंगे एंड देन अलाउ टू इन्फेक्ट द टोबैको प्लांट। तो इस प्रोसेस से ही ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा टोबैको। अब इन फ्यूचर जब भी कभी भी टोबैको प्लांट पे ये निमेटोड अटैक करेगा तो दे वर अनेबल टू परफॉर्म देयर वर्क, दैट मीन्स दे वर अनेबल टू डैमेज द रूट। तो हमने दो लिए एग्रीकल्चर फील्ड में, दोनों ही बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखने। बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट आंसर में 2 या वेरी शॉर्ट आंसर में बन सकते हैं। नेक्स्ट वी टेक द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द मेडिसिन। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो मेडिकल फील्ड में हम यूज में लेंगे उसमें क्या करेंगे? द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक यूज, दैट मीन्स डायग्नोसिस और थेरेपी, दो कंसेप्ट में मिलेंगे। डायग्नोसिस में भी देखेंगे कैसे हम थेरेपी में यूज में ले रहे हैं, कैसे डायग्नोसिस में यूज में ले रहे हैं। अभी कैसे सेफ है और कैसे कैसे इसमें यूज में लेंगे थेरेपी में। अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज commonly observed with the similar product isolated from non-human resources। अब नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं विच आर सिमिलर इन द ह्यूमन, तो वहां पे क्या हो रहा है कि अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं। जैसे कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता था अदर एनिमल्स से, तो वहां पे ये इंसुलिन कई सारे अनवांटेड जो है वो रिजल्ट दे रहा था, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज दे रहा था। And now these immunological responses lead to provide some changes in the human body। तो इस कॉन्सेप्ट पे साइंटिस्ट का ध्यान दिया है कि क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिसमें कोई अनवांटेड जो है वो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज ना क्रिएट हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। इस वजह से इन्होंने मेडिकल फील्ड में थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जनरली यूज द बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। However, the third recombinant therapy have been approved for the human use in the world, including India। तो यहाँ पे 30 recombinant therapy जो है लगभग इंडिया में अप्रूव कर दी गई। तो ये 30 जो थेरेपी यूज करते हैं इंडिया में विच इज बाय द बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे इनमें नंबर 1 पे आता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस थेरेपी का, कि जिसमें हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, विच इज नोन एज द ह्यूमुलिन। और ये ह्यूमुलिन जो है वो इंसुलिन की तरह ही वर्क करता है जनरली, विदाउट क्रिएट एनी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज का मीनिंग क्या हो गया कि जब हमने अदर एनिमल के सोर्सेज से जो इंसुलिन देना स्टार्ट किया, तो ये इंसुलिन जो था ये जनरली उस रिस्पेक्टेड ह्यूमन में ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट करने का। नाउ ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स दे डाइजेस्ट द ओन सेल्स। जिस होस्ट में जो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उसी होस्ट की सेल्स को ये जनरली डाइजेस्ट करने स्टार्ट कर दिया। 11 सो इट इज कॉल्ड अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। तो इसी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, दैट यूज द वर्ड जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। तो उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो है इस प्रोसेस में इंसुलिन प्रोड्यूस किया। अब इस इंसुलिन में क्या है, इस इंसुलिन कंटेन द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, चेन ए एंड देन चेन बी, लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस, और इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इंसुलिन की स्ट्रक्चर में क्या क्या है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड वर्ड रेफर टू प्रोटीन, यानी कि लॉन्ग चेन प्रोटीन है, इसकी ए चेन है और इसकी बी चेन है, और दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है, डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। इन मैमल्स इंसुलिन सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन। क्लियर। तो प्रो हार्मोन के फॉर्म में ये सिंथेसाइज होते हैं, दैट मीन दे प्रोसीड टू बिकम द मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। और फिर ये आगे जाके क्या होता है, मैच्योर होगा और फंक्शनल हार्मोन इंसुलिन में कन्वर्ट होगा। इट कंटेन एन एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड सी पेप्टाइड।
तो यहाँ इन सारे प्रोसेस से एक जनरल वे में बता दिया कि ह्यूमन इंसुलिन कैसे वर्क करता है एंड व्हाट विल बी द आवर टारगेट टू प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय नेचुरल वे बाय यूज ऑफ द दिस जीन। ठीक है, तो इस जीन का यूज करेंगे। अब इस टेक्निक में हमने क्या किया, ये जो सी पेप्टाइड है इज एब्सेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, और ये जो सी पेप्टाइड है ये क्या है, ये मैच्योर इंसुलिन में क्या है, एब्सेंट है। in mature insulin and it's removed during the maturation into इंसुलिन। तो ये जनरली क्या होता है कि जब मैच्योरेशन होता है तो ये जनरली रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके रिमूव करते क्या होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा, दिस रिमेनिंग पोर्शन इज द एक्टिव इंसुलिन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में क्लियर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये पूरा का पूरा क्या बना है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बना। इस प्रो इंसुलिन के फॉर्म में यहाँ का जो सेगमेंट है ये है ए पेप्टाइड, यहाँ वाला ये डॉट डॉट सेगमेंट ये बताया गया है बी पेप्टाइड, और एक और सेगमेंट इसमें बताया है विच इज सी पेप्टाइड। तो जब तक सी पेप्टाइड इसके साथ में अटैच है तब तक ये क्या है, इनएक्टिव है। और जैसे ही इस सी पेप्टाइड को यहाँ वाले पोर्शन से और यहाँ वाले पोर्शन से कट कर दिया जाए, ठीक है, दैट टाइम तो दो पोर्शन इसमें अलग आ जाएंगे। एक तो ये यहाँ से यहाँ कट लगेगा तो ए पेप्टाइड को अलग कर दिया, एक यहाँ से कट किया तो बी पेप्टाइड आ गया। तो सी पेप्टाइड जो है जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा, ये सी पेप्टाइड हो गया, और फिर के बाद में ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड को डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच करेंगे। तो इट इज द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन आफ्टर रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। क्लियर? तो ये एक टेक्निक है इसमें। अब अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ फैटेड कैटल्स, पिग्स, जितने भी पिग्स और कैटल्स थे, ठीक है, इनमें जनरली इस पर्पज से इनको क्या किया जाता था, इंसुलिन प्रिपेयर किया जाता था। और ये जितने भी एनिमल्स हैं इनसे जो प्रिपेयर हो रहा है इंसुलिन, ये कई इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा था, दैट मीन्स इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करने की रीजन से क्या हो रहा था कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने की वजह से कई साइड इफेक्ट आ रहे थे ह्यूमन बीइंग में। तो इस रीजन से साइंटिस्ट ने पेशेंट बिगन डेवलप एलर्जी हो रही थी। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक हमने यूज में ली, अचीव बाय द अमेरिकन कंपनी ई लिली ने जो है 1983 में इसमें यूज की। तो ये कंपनी काफी फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। इन प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस, अब इन्होंने क्या किया कि दो डीएनए सीक्वेंस जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिपेयर टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मा। दोनों को ए और बी, क्योंकि ये दोनों वर्क की है, तो इन दोनों को ई कोलाई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया। देन ए बी चेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस वर सेपरेटेड, और ए और बी चेन जो है वो जो सेपरेट की है इसको एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन किया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। और इस प्रोसेस से ह्यूमन इंसुलिन विच इज गिवन नेम इज द ह्यूमुलिन प्रोड्यूस किया। तो ये सारा जो प्रोसेस है हम पढ़ गए हैं, और इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन कंपनी ई लिली प्रोड्यूस human insulin which is called humulin in 1983, number 1. Second, the technique which is used to production of humulin, उस टेक्निक का नेम क्या है, the name of technique is called recombinant technique, जो हमने प्रीवियस में जो है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ी है कि ये recombinant टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे हमने इसको प्रिपेयर किया गया है 2 डीएनए सीक्वेंसेस। अब 2 डीएनए सीक्वेंसेस हमने इसमें प्रिपेयर किए, यानी कि हमने ये जीन जो है वो पेनक्रियाज जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है ये जीन, और पेनक्रियाज से इस जीन को एक्सट्रैक्ट करके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसको हमने प्रिपेयर किया है। पीसीआर से इसके एम्पलीफिकेशन किया है और मिलियंस कॉपी जो है इसकी प्रोड्यूस की है। जब हमारे पास में मिलियंस कॉपी आ गई तो उसका कुछ परसेंटेज हमने एक्सपेरिमेंट में यूज में लिया है और रिमेनिंग परसेंट हमने जीन बैंक में स्टोर कर दिया। तो जो हमने जीन यूज में लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज में लिया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, और ई कोलाई के प्लाज्मिड में इसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, मींस इसको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को हमने क्या किया, कल्चर किया, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया, प्लाज्मिड में मिलियंस कॉलोनी बनाई। अब इस सारी मिलियंस कॉलोनी जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को जिसमें ये जीन ए और बी दोनों है ये प्रेजेंट है, इनको हमने बायोरिएक्टर में ट्रांसफर किया। जब इसको बायोरिएक्टर में ट्रांसफर किया तो ऑब्वियस है कि प्लाज्मिड के पास में जो जीन होगा
उसी जीन के अकॉर्डिंग प्लाज्मिड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और एक्सप्रेशन क्या होगा उसका? एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्म में अपना एक्सप्रेशन देगा ये, या प्रोडक्ट को फॉर्म में एक्सप्रेशन देगा। तो यहाँ हमारा टारगेट क्या है कि ये दो प्रोटीन हमें चाहिए, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड की। तो दोनों जो है ये प्लाज्मिड ई कोलाई बैक्टीरिया बायोरिएक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में देंगे। अब इनको जब हमने ऑब्टेन कर लिया, इनको हमने जब उससे सेपरेट कर लिया, प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, तो इनके बीच में क्या कर दिया, इनके बीच में हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर दिया। तो जैसे ही दोनों ए और बी पेप्टाइड ज्वाइन हुए, सेम पेप्टाइड सीक्वेंस के, दैट मींस इन पेप्टाइड में वही अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जो इंसुलिन में होता है। क्लियर? तो जब इनको ई कोलाई की हेल्प से प्रोड्यूस किया, फिर सेपरेट आइसोलेट करके ए और बी पेप्टाइड को ज्वाइन कर लिया, दैट टाइम वी ऑब्टेन आर्टिफिशियल इंसुलिन, ठीक है, या मैन मेड इंसुलिन प्रिपेयर कर लिया, जो मैन ह्यूमन बीइंग के जीन से ही प्रिपेयर किया गया था। और इसको नेम दिया गया ह्यूमिलिन, और इसको ह्यूमिलिन नेम दिया गया, विच इज वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल था। कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुई थी, ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यूनोलॉजी इफेक्ट भी इसमें नहीं रहे। तो दीज आर द प्रोसेस टू प्रिपेयर द ह्यूमिलिन, ठीक है। तो ये एक जनरल बताया कि कैसे जो प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है बाय रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। तो ये इन जनरल होता है, ठीक है। तो ये इसी टेक्निक को इन्होंने क्या कर लिया, यूज में ले लिया, और इस जीन को इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में, और ई कोलाई से प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, और फिर ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करवा के क्या प्रिपेयर कर लिया, ह्यूमिलिन। और ये ह्यूमिलिन इज द आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, और बीटी में एप्लीकेशन में ये तीन जो अभी मैंने करवाए थे, बीटी कॉटन, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन विच इज बाय द ट्रांसजेनिक टेक्निक, और थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिलिन, द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इन बायोटेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी, इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड, इस कंपनी का नेम 1 मार्क में पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ अमेरिकन कंपनी यू प्रिपेयर द ह्यूमिलिन। तो ये कंपनी का नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। लिली कंपनी इन 1983 में इसने बनाया था, ठीक है। तो इट इज मेडिकल यूज में फर्स्ट आ गया टॉपिक। अब मेडिकल यूज में फर्स्ट टॉपिक आने के बाद में हम लेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में कैसे हम इसको यूज में, तो जीन थेरेपी में जनरली क्या होता है कि पहले डायग्नोसिस किया जाता है, डायग्नोसिस करके हमें पता लगाया जाता है कि विच टाइप ऑफ इफेक्ट और विच टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफेक्ट प्रेजेंट इन द अपकमिंग चाइल्ड, जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है उसमें कौन सा जेनेटिकल डिफेक्ट है। तो उस डिफेक्ट को हम जाइगोटिक लेवल पे, एम्ब्रियोनिक लेवल पे उसको करेक्ट कर सकते हैं, इसी को जीन थेरेपी कहते हैं। ये जीन थेरेपी जो है वो इस प्रोसेस से यूजफुल है। Now it is a collection of methods allow the correction of gene defect diagnosis in the child or embryo। तो चाइल्ड और एम्ब्रियो में जो हमने डायग्नोसिस किया है, इसमें जो डिफेक्टेड जीन है उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि डिफेक्टेड जीन की वजह से हीमोफीलिया होता है, एंड हीमोफीलिया जो होता है जनरली, उस हीमोफीलिया में क्या होगा, 8 नंबर फैक्टर जो होगा वो इसमें नहीं होगा पाएगा। जैसे हीमोफीलिया में ब्लड जो है वो कंसिस्टेंटली उस पर्टिकुलर कट पार्ट से आता रहेगा, ठीक है, हीलिंग नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी ड्यू टू फैक्टर 8। अब इस फैक्टर 8 का जब पता किया तो इट इज ड्यू टू द जेनेटिकल चेंजेस। तो जीन में चेंज की वजह से हुआ, तो इसको जीन डिफेक्ट बोल दिया गया। अब इस जीन डिफेक्ट को जीन थेरेपी से करेक्ट किया जाएगा बाय इंसर्टेशन ऑफ नॉर्मल जीन, the defected mutant allele of gene are replaced। तो म्यूटेंट जो डिफेक्टेड जीन है, एलिल है, को वहां से रिमूव कर दिया, और जो बाहर से जो है वो नॉर्मल जीन, इसी की प्रोसेस का नॉर्मल जीन जो है वो इंसर्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस से जो है वो जीन थेरेपी यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम 1990 साइंटिस्ट एम ब्लेज एंड डब्ल्यू Andrusco of the National Institute of Health attempt the gene therapy on the 4-year-old girl with the adenosine deaminase ADA deficiency, ठीक है। अब इस डेफिशिएंसी की जो डेफिशिएंसी की जो गर्ल थी,
इस पे इसने सबसे पहले जीन थेरेपी यूज में ली। अब ये क्यों होता है, ये एडिनोसिन डीएमिनेज, इट इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। बताता हूँ ये क्या होता है कि ये जीन पर्टिकुलरली डिलीट हो जाता है, ठीक है, फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। इन सम केसेस कैन बी क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी इसको क्योर किया जा सकता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट से भी इसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस से हम इसको क्योर कर सकते हैं। इन सम तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते ही ये जीन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो प्रोडक्शन करेगा इसका, एंड देन एंजाइम रिप्लेस भी कर दिया जाता है, बट इट इज नॉट फुल्ली क्यूरेटिव, तो ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। सो दैट्स व्हाई द बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज द टेक्निक विच इज जीन थेरेपी। अब यहाँ पे जीन थेरेपी में जनरली lymphocytes from the patient blood cell were grown in the culture। पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट को रिमूव किया, फिर कल्चर किया, एंड देन द फंक्शनल एडीए सीडीए दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वाज द इंट्रोड्यूस्ड टू द लिम्फोसाइट एंड यूजिंग द रेट्रोवायरल वैक्सीन। अब हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, हमारा टारगेट है कि हम इसमें इस पर्टिकुलर जो पेशेंट है इसमें हमारा टारगेट है कि एडीए डेफिशिएंट जीन को इंसर्ट करवाना। तो ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल है, ये जाइगोटिक लेवल पे नहीं है, एम्ब्रियोनिक लेवल पे नहीं है, 4 ईयर है, ओल्ड गर्ल है, तो हमारा टारगेट होगा कि इस जीन का इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, लिम्फोसाइट ली है, यहाँ पे उसकी लिम्फोसाइट सेल्स ली है, दैट मींस डब्ल्यूबीसी सेल्स ली। लेकिन अगर ये जाइगोटिक एम्ब्रियोनिक लेवल होता तो उस एम्ब्रियो में इंसर्ट करवाना पड़ता है जी, क्लियर। तो लिम्फोसाइट सेल ली है इसमें, और लिम्फोसाइट सेल लेने के बाद में इसने इससे प्रिपेयर किया फंक्शनल एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये प्रिपेयर किया ये, और फिर इंट्रोड्यूस करवा दिया लिम्फोसाइट से। सेम टेक्निक जो हमने टूल्स में लिखी थी, और रेट्रोवायरल वेक्टर फ्यूज में। रेट्रोवायरल वेक्टर क्या करता है, जनरली ये वेक्टर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, अगर ये सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड इसको मिलेगा तो सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से ये पूरा डबल स्ट्रैंड बना देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट्रोवायरल वेक्टर, ठीक है। तो रेट्रोवायरल वेक्टर प्रोड्यूस द कंप्लीट डीएनए व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड की हेल्प से ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा, एंड द लिम्फोसाइट वर ट्रांसफर इनटू द पेशेंट बॉडी। अब ये लिम्फोसाइट जो प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है, ये क्या करेगी, पेशेंट बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट इज डन बिकॉज दीज सेल आर मॉर्टल, ठीक है। तो मॉर्टल होगी सेल, और अलग अलग टाइम पीरियड, इनका जो टाइम पीरियड फिक्स होता है उस टाइम पीरियड में ये सेल्स जो होंगी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो बॉडी में इंसर्ट करवाई एंड वर ट्रांसफर इनटू द पेशेंट बॉडी। नाउ दिस पीरियोडिक infusion of such genetically engineered lymphocyte is done because these cells are more clear. For permanent cure, the gene isolated from the bone marrow cell producing ADA at the early embryonic stage can be possible. ये आपको बताया था मैंने कि if we want to permanent cure of this disease, that time we use this technique in the zygotic level or in the embryonic level. तो zygotic और embryonic level पे हम इस टेक्निक को यूज में लेंगे, ठीक है। और अगर हमें टेम्परेरी क्योर चाहिए तो हम इसको आफ्टर बर्थ जो है वो जैसे इसमें यूज में लिया है उसमें भी। अदर डिजीजेस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पाइल्स आर आल्सो ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। तो इन सब पे भी वर्क चल रहा है। तो अब आता है कि ये तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था कि जीन थेरेपी के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये है। अब ये आता है कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो पहले तो जीन थेरेपी के बारे में बताना है, ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद में फर्स्ट टाइम किसने किया ये लिखना है, और थर्ड टाइम एडीए का जीन हमने थेरेपी किया था ये लिखना है। और प्रोसेस में हमें रिकॉम्बिनेंट, ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के 2 और 3 स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड इट इन योर नोट्स, ठीक है। नोट्स में ये मैं सिस्टमेटिक रे डायग्राम बना के आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो यहाँ तक ये जीन थेरेपी का पोर्शन, ठीक है, और ये डिजीज की इससे डायग्नोसिस है। अब